اور پلوں کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشے اور مہیا کیے تاکہ ہم سبھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر تیرے نام کو اونچا کر سکے۔ اے بزرگ خدا تیری شکر گزاری کرتی ہوں گزرے ہوئے سارے وقت کے لیے، رات کے لیے کہ تو نے ہم سبوں کو باحفاظت اور اپنی سلامتی میں رکھا خدا، ہر طرح سے سنبھالے رکھا خدا۔ تیرا شکر کرتی ہوں ہر ایک جان کے لیے کہ آج صبح ان سبوں کو باحفاظت اور سلامتی سے پایا۔ میرے خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں، شکر کرتی ہوئی جلال کے بادشاہ تیری حضوری میں اس بات کے لیے جھکی ہوں خدا کہ آج جب تیرا بندہ تیرے منہ کی باتوں کو ہم سبوں کے درمیان رکھنے کو ہے تو ہمارے ذہنوں کو کھول، ہمارے ذہنوں کو تو وسیع کر خدا، ہمارے دیکھانوں کو تو اپنی جانب لگا خدا، تاکہ ہمارا دیکھان نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے خدا، فقط تیرے منہ سے نکلی ہوئی ان باتوں کی جانب لگا رکھے جن میں ہماری زندگی ہے۔ اے خدا تیرے بندے کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک ورڈ ہم سبوں کے لیے برکت ہو خدا، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے برکت ہو۔ تو ابھی سے اپنے بندہ کو اپنی حکمت سے بھر خدا، اور اپنے بندہ کے لبوں کا، زبان کا تو ذمہ لے خدا۔ آج ہم 30 یا 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لے کر جائیں، اور وہ پھل خدا درخت کی صورت اختیار کرے خدا، تاکہ ہم تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، تجھ میں پیوست رہیں خدا، اور تیرے ہی نام کو بلند کر کے رکھیں، یسوع المسیح کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ سو وقت ہے کہ ہم خداوند کا زندہ کلام سنیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم بھائی صاحب آئیں گے اور خداوند کا زندہ کلام سنیں۔ شکریہ جی، سب کچھ ٹھیک رکھیے، اللہ آپ کو بڑی برکت دے، سلامتی بخشے۔ کیا سب خوش ہیں؟ ہاللیلویہ۔ ذرا ہاتھوں کو لہرا کر تھینک گاڈ، ہم سب خوش ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ایمان پر ہے۔ کس پر ہے؟ ایمان پر۔ کون کون سننے آیا ہے؟ سب۔ خدا آج کے کلام کے سبب سے جو ہے وہ آپ کو بڑی جو ہے وہ برکت دے۔ اس سے پہلے کہ میں جو ہے وہ اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں، آج ایک اور دن بھی ہے، 14 اگست 1947، 75 ایئرز ہے وہ 75 سال پہلے جو ہے وہ یہ 14 اگست پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ یہ دن جو ہے وہ رقم ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور اس دن کے حوالے سے جب میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ بطور اقلیت ہو سکتا ہے آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ خوش نہ ہوں، بطور اقلیت ہو سکتا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر خوش نہ ہوں۔ جو محنت ہے، جو اچھی جاب کرتا ہے، جو بزنس اچھا کرتا ہے، اس کا چلتا ہے، ہو سکتا ہے وہ خوش بھی ہو۔ پہلے کی بات کرتا ہوں، آج سے چند سال پہلے میں پاکستان جو ہے وہ ملک اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی میں بچہ تھا تو 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور میں کہتا تھا کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک ہوا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اگر وہ آج زندہ ہو گئے تو آپ پوچھ لیں کہ آپ کو اس کے لیے کیا سٹرگل کرنا پڑی، آپ کو اس کے لیے کیا محنت کرنا پڑی اس ملک کے لیے۔ یہ جو آج کل پاپا کر رہے ہیں نا باجو والے، وہ یہ نہیں کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، انہوں نے کی ہے۔ ہمارے مسیحی نوجوانوں نے، ہمارے مسیحی لیڈرز نے، مسلم لیڈرز نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑی محنت کی ہے، اور اس کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ ابھی بھائی امجد کہہ رہے تھے آزادی جو ہے خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، اور یقیناً خداوند نے ہمیں اس ملک کے اندر آزاد کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس ملک کے اندر ہم آزاد ہیں۔
जो कुछ भी हमारे साथ बिहेव हो जाता है वो अक्सर हमें अकलियत की वजह से हो जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। अगर इन सिलसिलों से निकलना है तो मेरे बहनों और भाइयों, इसका इख्तियार कलीसिया के पास है। 1946 के अंदर एक तंजीम थी, उस तरह ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन, और इसके जो मेन किरदार थे वो दीवान बहादुर एसपी सिंगर थे, जो मसीही थे और वो स्पीकर भी थे पंजाब असेंबली के। भाई आज हम अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझती होंगी। फजले इलाही थे और उसके अंदर AR गोम्स थे, और जो है वो FI चौधरी थे। ये बड़े सिरफरिस्त जो है वो लीडर्स थे, और इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। और उस दिनों ने जो डॉन जो अखबार थी उसका जो एडिटर था वो था पठान जोसेफ, एक मसीही नौजवान था, और उसने धड़ाधड़ इस मुल्क की हमायत के लिए उस वक्त डॉन एक्सप्रेस के अंदर उन्होंने उसने डॉन अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर उसने एक अलग मसीहों के लिए एक मुल्क की जो उन्होंने दरखास्त रखी, जो आइडियाज़ पेश कर चुके थे, और उसके अंदर इन हमायतियों ने भी कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान जब मिला है तो उसके अंदर मसीहियों का बड़ा अहम रोल है। ये बात मैंने आपको पहले कही है कि अगर मसीही पस्त है तो ये मसीहियों की अपनी गलती है, इस मुल्क का कसूर नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी हुकूमत के साथ उन्होंने फेस किया, उनको मुकाबला किया। उनका हिंदुस्तान ने बड़ी फेस किया उसमें बरतानवी हुकूमत, इंग्लैंड की हुकूमत के साथ सामने खड़े होकर डट गए कि हमें एक अलग से मुल्क चाहिए। मैं नहीं जानता कि अगर वो मुल्क हम पर तसल्लुत होता तो इस वक्त क्या हालत होती, लेकिन मैं इतना समझता हूँ बतौर खादम होते हुए कि जब मैं इस मुल्क के अंदर हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बाइबल नॉट अलाउ, बाइबल अलाउ नहीं है। बहुत से ममालिक आज भी इस 21वीं सदी के अंदर भी जो बाइबल है बहुत से मुल्कों के अंदर इजाजत नहीं उसको जाने की। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी, कोई अकलियत अगर दुआ कर रहा है, स्पीकर में कर रहा है, खुले में कर रहा है, बंद में कर रहा है, तो उसको आज़ादी है, बल्कि हम उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है। देखिए कि नहीं देती है? जब हमारे त्यौहार होते हैं, जब बड़े हमारे पंडाल लगते हैं, तो गवर्नमेंट ही तो पुलिस भेजती है, और कौन भेजता है? अब बहुत से ऐसे ममालिक, मैं किसी मुल्क का जिक्र नहीं करूंगा, बहुत से ऐसे ममालिक हैं इस दुनिया के अंदर जहां पर आप यीशु मसीह का नाम लें, आपका सर जो आपके धड़ से लग कर दिया जाता है, जहां पर आपके हाथ में बाइबल नजर आ गई और आप पकड़े गए इस बाइबल के साथ, आपके हाथों को काट दिया जाता है आज भी। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर जो कुछ भी हो रहा है तो मैं समझता हूं मेरे बहनों और भाइयों, इसके अंदर हम ऐसा बड़े अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बात लिखी है कि ईमानदारों की दुआओं के असर से शहद सरफराजी पाती है। मैं किसी को डिसाइड नहीं कर रहा, आप सब मेरे हम वतन हो, आप मेरे सारे हम मजहब हो, मैं आप सबको सिर्फ इनकरेज करना चाहता हूँ। रास्तबाजों की दुआ के असर से शहद सरफराजी पाते हैं। अगर आज हम सरफराजी की जानिब जो है वो नहीं है तो मेरे बहनों और भाइयों, आपको बताता चलूं, हमारी दुआओं की कमी है। हमारी खुदा के हुजूर में घुटना जो है लाना, अपने आप को झुकाना, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम झुकते नहीं हैं। अगर कभी हम पर मुश्किल आई तो उस टाइम में हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 5 मिनट इससे ज्यादा शायद नहीं, जो प्रेयर करते हैं उनको वो 1-2 घंटा महसूस नहीं होता, लेकिन जो कभी कभार भी नहीं करते और सिर्फ मुश्किल में उनको यीशु याद आता है तो सिर्फ वो 5-10 मिनट करेंगे, 10 मिनट में उनके लिए बहुत मुश्किल से होगा, और वो फिर 5 मिनट दुआ करेंगे और 40 को बताएंगे कि मैंने दुआ की है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? दानियल जो है, दानियल, सब अपने आप को जरा दानियल की जगह पर लाकर देखिए। दानियल वो नौजवान था जो 16-17 साल की उम्र में था, और उसको जब असीर करके शायद बाबल
बाबल के अंदर ले गया, नबूकदनेस्सर बादशाह उसको वो बाबल के अंदर ले गया और वहां पर जब वो एक असीरी के असीर रहा महल के अंदर, कसरे सोसन के अंदर, और ये था उसके 3 और दोस्त थे, सदरक, मीशक, अबदनेगो। और बाइबल ये दिखाती है कि लिखा है दानियल के ताल्लुक से लिखा है कि उस पर अल्लाहों की रूह थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसके मजहब पर बदनामी हो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसके यहूदी खुदा को कोई बुरा भला कहे, बल्कि असीर करके लेके गया, वहां पर गुलाम है, वो वहां पर तब बंदी है। असीर समझते हैं बंदी कि मैं इजाजत दूंगा तो वो पानी पिएगा। और इस नौजवान की मैं आपको बात बताता चलूं कि जब इसके सामने खाना पेश किया गया है, देवताओं से के आगे रख के प्रेयर करके दुआ करके जब इसके सामने खाना रखा गया, उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाया उसने। उल्टा उसने कहा कि मैं साग पात दो, मैं सूखी रोटी दो, हम वही खाएंगे। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम मसीही कहना भंडारा नहीं छाड़ते। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आज हमारे यहाँ पर अकलियत की ये कंडीशन है तो ये हमारी प्रॉब्लम्स है। ना लंगर छोड़ते हैं, ना भंडारे छाड़ते हैं, कुछ भी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप खुदा पर तवक्कुल करेंगे तो वो आपके साथ पात के अंदर भी खुदा अपनी कुदरत को रखेगा। दानियल के अंदर रखा, और बाइबल ये कहती है कि उसके ऊपर अल्लाहों की रूह थी। बाबल का जो बादशाह है वो अपने दौर का एक ऐसा बादशाह रहा है जो सुपर पावर था, जिसको आजकल इराक कहा जाता है। इराक का जो बादशाह था वो सुपर पावर था, और ये सुपर पावर बादशाह है। आज अमेरिका सुपर पावर है, तो किसी को कोई ना समझे या ना समझता है तो समझे, ना समझे तो ना समझे, कोई इस पर रोक नहीं डालता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो बाबल का बादशाह था वो सुपर पावर था, बाबल सुपर पावर था, लेकिन वो दानियल के मोहताज थे। क्या थे दानियल के? दानियल पर खुदा का रूह था, और जब उनके बादशाह को ख्वाब आता था वो दौड़कर दानियल के पास जाता था, मेरे ख्वाब की ताबीर कर। और वो दानियल का मोहताज था, बतौर अकलियत अकेला शख्स, और उस पूरे कसरे सोसन महल के अंदर राज कर रहा है। क्या था? डर था उसके अंदर, खुदा का खौफ था। वो खुदा को खुदा समझता था, वो कानून को कानून समझता, वो शरीयत को शरीयत समझता था। उसे ये सोचा कि नहीं, मेरा जो कलाम है, जो खुदा ने मुझे दिया है, ये कहता है कि ये खाना तूने नहीं खाया तो मैंने नहीं करना। और जब मेरा जो कानून है, जो शरीयत है, कलाम है, वो ये कहता है कि तूने मूर्ति के आगे सजदा नहीं करना तो नहीं करना मैंने। और जब मूर्ति के सजदे की बात की गई है तो वहां पर भी उसने कोई सजदा नहीं किया। उसको कह दिया गया अब लो भी तूने 1 महीने तक सिर्फ बादशाह से मांग रहा है, उसी को सजदा करना है। उसने सुना, ओके, उसने क्या किया? उसने अनसुना किया। देखा कि जैसे वो अपने घर में गया, असीर था, यरूशलेम दूर था, और उसने अपनी खिड़की खोली जो यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और खोलकर खुदा के सामने झुक गया। और जब वो पाया गया वो अपने खुदा के सामने झुका है, उसको पकड़ा गया। और ये बात कहां पर आ गई थी? ये दारा बादशाह फारस की हुकूमत की बात कर रहा हूं। बाबल पर फारस ने हुकूमत की। अब ये बात ये पहले की कसरे सोसन उस महल के अंदर था, वहां से शायद बाबल खत्म हो गया, वहां पर दारा बादशाह आ गया शायद फारस का। और उस दौर के अंदर मूरत की बात हुई थी कि सिर्फ मूरत को सजदा करना और किसी को नहीं करना, और उसने इस चीज का इनकार किया। और मेरे बहनों और भाइयों, और जैसे बाबल के बादशाह को इसको जरूरत पड़ती थी, वैसे ही फारस के बादशाह को भी इसकी जरूरत पड़ती थी। दानियल को ढूंढो। और जब दानियल के अंदर ये कसूर पाया गया हुकूमत के मुताबिक कि तूने सजदा जो है वो अपने खुदा को नहीं करना, तो बाइबल में ये मेरे बहनों और भाइयों बताती है कि उसने इनकार किया उस मूरत के सामने झुकने
सीने से, उसने कहा कि मैं सिर्फ झुकूंगा तो अपने यहोवा खुदा के सामने झुकूंगा। और जब वो पाया गया है, उसको शेरों की मांद के अंदर, जो उसकी सजा थी, शेरों की मांद के अंदर जब फेंका गया है, तो उसको फेंकने के बाद भी दारा बादशाह परेशान था। एक तो क्लियर, आज अक्सरियत का कोई अफसर वहां उसके माथे काम करते हो तो वो क्या किसी का रोक जानेगा? आप समझते हैं? अगर वो मुलाजिम को 2 गालियां भी दे मारे जो क्रिश्चियन हो, वो चुप करके सह लेगा, उसको पता है कि मैंने नौकरी करनी है। सही कह रहा ना मैं? और ये बादशाह जब उसको जेल के अंदर फेंक कर जो परेशान है, क्यों परेशान है? क्योंकि वो जानता था कि इसका खुदा जिंदा खुदा है। और बाइबल हमें ये बताती है कि जैसे ही पूरी रात वो बादशाह के उस मार्ग के अंदर शेरों, जो भूखे शेर थे उनके अंदर जब रहा है, और सुबह सवेरे जो बादशाह पूरी रात में चल रहा है, भाग कर गया और जाकर कहा कि दानियल, क्या तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर रहा? उसने कहा बादशाह साहब, मेरा खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और इन भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए। देख मैं महफूज हूं। एक अकलियत शख्स, उसके साथी भी उसके साथ नहीं है, अकेला वहां पर दानियल है, और शेरों की जरूरत नहीं है कि उसको आप उसको खा पाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकलियत होते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं कि तुम कलीसिया हो। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, उसने कहा कि तू वो चट्टान है जिस पर मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया को कायम करूंगा, और उस कलीसिया को इस जमीन पर बांधने का भी इख्तियार है और खोलने का भी इख्तियार है। जो कुछ कलीसिया इस जमीन पर बांधेगी वो मैं आसमान पर बांधूंगा, और जो कुछ कलीसिया इस जमीन पर खोल देगी मैं आसमान पर खोल दूंगा। और ये इख्तियार कलीसिया के पास है और जो आप हैं। मेरे बहनों भाइयों, दानियल अकेला था लेकिन खुदा उसके साथ साथ था और वो खुदा से डरता था। आज हम बहुत हैं, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि 2 या 3 मिलकर मेरा नाम ले, मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा। और हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है। हम अपने घर में पुकारे, हम अपनी गली में पुकारे, किसी खेत में पुकारे, बाजार में पुकारे, मेरे बहनों और भाइयों, अब वो बात खत्म जब खुदा का अहद का संदूक, जब खुदा की हजूरी एक पर्दे में कैद रहती थी, अब खुदा की वो हजूरी निकल कर आज कलीसिया तक पहुंच चुकी है। आज वो पर्दा फट चुका है जो मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर मेरे और आपके लिए आजादी का काम किया। अगर आज भी उस आजादी को हम अहमियत ना दें, तो यीशु मसीह ने आजादी जो है वो अच्छी चीज है, गुलामी अच्छी चीज नहीं है। 430 साल की गुलामी अब उन्होंने इस्राएल ने जो भरी इस्राएल के अंदर सही है। आप पढ़ लीजिए पैदाइश की किताब, वहां पर वो मुश्किल के अंदर है, वहां पर वो ईंटें बनाते हैं, वहां पर वो ईंटें पका कर यहाँ तक कि ईंटों को पकाने के लिए उनको जो बालन था, जो भूसा था, वो भी लकड़ियां भी नहीं दी जाती थी। और जब 70 साल की असीरी के अंदर, नबूकदनेस्सर की असीरी के अंदर जो गए हैं, वहां पर जाकर उनकी हालत ऐसी हुई, जब भी बनी इस्राएल के अंदर गुनाह हुआ, खुदा ने अपने नबी को भेजा, खुदा ने अपने खादिमों को भेजा, और जैसे ही वो कलीसिया वो जाते थे, नबी जाते थे और वो कहते थे कि तुम्हारे अंदर गुनाह है, और वो बाज नहीं आते थे इस्राएली। और जब वो असीरी के अंदर गए 70 साल के अंदर उन्होंने असीरी का दुख सहा, और बाइबल हमें ये सिखाती है कि उन्होंने फिर पक्की तौबा की बुत परस्ती से कि अब हम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, आप एक स्टैचू बना लोगे, आप एक मूर्ति बना लोगे, उसको सामने रख के सजदा करोगे, ये बुत परस्ती है? नो, हर वो चीज जो आपको खुदा से बढ़कर लगने लगे वो आपका बुत है, वो आपका खुदा है। अगर आज आप खुदा को छोड़कर आप चलेंगे दिहाड़ी ना तो मेरा ज्यादा सौट देगा, इट मीन्स आपका जो काम है वो आपके लिए खुदा है,
वो आपका बुत है, वो उसकी प्रस्तुत कर रहे हो। कितनों को इस बात की समझ आ रही है? दानियल अक़लियत के अंदर था। अब दारा बादशाह फारिस उसको इतना था कि उसने एक और कानून पास किया, और हिस्ट्री इस बात को बताती है कि जो बादशाह साइन कर देता था वो होता था। और दारा बादशाह ने एक और फाइल पर सिग्नेचर किए इनके खिलाफ, और दानियल जो है जब उसके सामने गया उसने अपने सिग्नेचर ही बदल दिए। उसने कहा नहीं, खत्म, ये कानून खत्म, क्योंकि ये दानियल आ गया, बात ये खत्म। आज हमें किसी मसले के लिए जाना पड़े तो हम पता नहीं कितने कितने एमएलओ को, कितने कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स को ढूंढते हैं कि हमारी सिफारिश करे। मेरी बहनों और भाइयों, उसने किसी वज़ीर आज़म को नहीं ढूंढा, उसने किसी सदर को नहीं ढूंढा, बल्कि वो अकेला गया है। और बादशाह जो साबित इख्तियार है बाइबल के मुताबिक, उसके अंदर की जरूरत नहीं, उसने उस कानून को खत्म कर दिया। एक और अक़लियत का मैं जिक्र करूं, एक और नौजवान नजर आता है, यूसुफ मिस्र के अंदर भी अक़लियत था ना, कि मिस्री था वो, अक़लियत था। और बाइबल ये हमें बताती है वासिया कि मिस्र के लोग जब वो घोड़े पर बैठा था उसको खुदा कहते थे। है नहीं हैरानी वाली बात? आज कोई मसीही ऑफिसर बन गया तो ये लोग उसको चूड़ा कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नौजवान अक़लियत है, और मिस्र भी एक सुपर पावर रहा है। और उस मुल्क के अंदर ये जो यूसुफ है, ये एक घोड़े पर बैठा है, एक रथ पर बैठा है, और मिस्री लोग झुक झुक कर कह रहे हैं कि ये मिस्र का बादशाह, ये मिस्र का खुदा है। पढ़िए बाइबल को, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये बाइबल के अंदर है। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहियों ने इस मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान किया हुआ है। और मैं नहीं समझता कि हमारे जो मसीही लीडर्स थे वो बेवकूफ थे, वो समझदार थे। और आज का दौर होता तो हम कहते नहीं घोड़े की हुकूमत सही थी। अरे अब आप ज्यादा आजाद हो सकता है आपको इबादत ही ना करने देते, लेकिन अभी आप जो है इबादत करते हो। और उस तहरीके पाकिस्तान के अंदर जितने भी नौजवान थे उनके अंदर नस्लें हैं, तो उनको मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस तहरीक के अंदर हिस्सा लिया। ये मुल्क और मेरा और आपका है। और बाइबल ये सिखाती है कि ईमानदारों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज खुदा ने आपको ये फजल दिया है कि आप किसी रियासत के अंदर रहकर अपने आप को आजाद कहते हो, अपने आप को किसी मुल्क का बाशिंदा कहते हो। किसी ने सुना पखीवास लफ्ज़? पखीवास, उनका कोई आगे पीछे नहीं होता। आज इतने चुगी बना रही है कल औथे। मेरी बहनों और भाइयों, उनकी कोई पहचान नहीं। क्या पहचान है? पखीवास, तेरा कोई कारोबार नहीं। अरे आप पखीवास नहीं हो, आप पाकिस्तान के बाशिंदे हो। आप पाकिस्तान की रियासत की एक अहम शख्सियत के अंदर हो। और बाइबल ये दिखाती है कि ईमानदारों की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाते हैं। अगर आज पाकिस्तान कायम है तो हम मसीहियों के सबब से, क्योंकि हम हर इतवार को यहाँ पर खड़े होकर पाकिस्तान की बका के लिए दुआ करते हैं। कभी किसी ने गौर किया आज तक, और आज 10 सालों में मैंने दुआ के एंड में पाकिस्तान के लिए दुआ न की हो? किसी ने गौर किया कि मैंने दुआ नहीं की? हर इतवार पाकिस्तान के लिए दुआ होती है चर्चों के अंदर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये खुदा ने हमें आज़ादी दी है। जिस तरह इस मुल्क के अंदर आज़ादी है, शुक्रगुजार होना चाहिए हमें उन लीडर्स का, कायद-ए-आज़म का, इलामा इकबाल का, उन तमाम लीडर्स का, जिनके सबब से आज हम एक शहरियत रखते हैं। और ये बहुत है। हमारे लीडर्स, प्रधान जोधर का मैंने नाम बताया, दीवान बहादुर एसपीसी का भी बात कर रहा हूं, इन्होंने असेंबलीज के अंदर खड़े होकर कहा था कि हम पाकिस्तान, हमें जरूरत है पाकिस्तान की। और हिंदू नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान अलग हो, ये हमारे साथ ही रहे, हम अक्सरियत है और ये हमारे नीचे दब कर रहे।
ने कहा कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और एसपी सिंह ने ये बात कही थी कि जो सीने पर गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे, और आज पाकिस्तान बना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं कोई ना तो सियासी लीडर हूँ, ना मुझे इस तरह की तकरीरें जब आती है। मैंने तकरीर नहीं की, मैंने आपको सिर्फ बताया कि हम अगर चाहें तो इस मुल्क की काया पलट सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस मुल्क के हालात पलट सकते हैं। लेकिन कैसे? उस ईमान के साथ जो ईमान डेवलप होता है खुदा के कलाम में से, जो ईमान क्रिएट करने वाला यहोवा खुदा है, जो दानियल के साथ था, जो यूसुफ के साथ था, और जो मेरी और आपके साथ है, क्योंकि उसने ये बात आपसे वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी दुनिया का आखिर नहीं हुआ। आपको बताऊं, मसीहियों के पास एक बड़ी उम्मीद थी। सुबह का भाई कह रहे थे, मुस्लिम भाई को कह रहे थे कि 25 साल बाद पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगा। आपको बताऊं, 25 साल नहीं, जब यीशु मसीह आएंगे तो उसके बाद भी 1000 साल दुनिया बाद रहेगी। हालेलुया। ये बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो 1000 साल तक दुनिया बनेगी, पैदा होगी, मरेगी, दफन होगी, शादियां होंगे, ब्याह होंगे। 1000 साल तक जब यीशु मसीह आ जाएंगे, उसके बाद कितनी बड़ी उम्मीद है, कितनी बड़ी सच्चाई है जो गैर कौमें नहीं जानती, लेकिन हम मसीही जानते हैं। इसलिए हम मसीहियों को क्या करना चाहिए? हम मसीहियों को वो करना चाहिए जो खुदा का कलाम कहता है। हम मसीहियों को वो करना चाहिए जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। एक वाला निकालिए, दूसरा थिमोथियस 4 बाब, सफा नंबर 250। जिनके पास बाइबल है खुदा आपको बड़ी बरकत दे, जिनके पास घरों में है उनको भी बरकत मिले, और जो नहीं लाते उनको बरकत थोड़ी सी कम मिले, लेकिन मेरे जरूर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगली दफा बाइबल लेकर आइएगा, ठीक है? कौन कौन लाएगा? कोई नहीं लाएगा? आप दिखाए, अगली दफा बाइबल कौन कौन लाएगा? ओह वेरी गुड, जोरदार तालियां अपने लिए कहिए। अच्छा, दूसरा थिमोथियस से 4 बाब है, और उसकी चलिए आइए सफा नंबर 250 पर ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है? क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। सब कहो आमीन। अब इस दुनिया के अंदर वो करते हैं जो आपकी मर्जी है, या वो करते हैं जो खुदा की मर्जी है? हमें बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना है। हम हालातों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम हालातों पर गालिब भी आ सकते हैं। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, अब्राहम 25 साल में एक बात सीख गया कि खुदा क्या फरमाता है। अब्राहम ने 25 साल में यही बात सीखी। और मेरे बहन और भाइयों, यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पौलुस है वो अपने स्पिरिचुअल सन थिमोथियस को कहता है कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। और क्या एंड पर क्या है उसने कहा कि मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। अब जो मसीही लड़ता है वो जीतता भी है और हारता भी है, लेकिन जो लड़े ना उसका रिजल्ट वो हारा ही है। ठीक है? जिसका साउल लड़ने नहीं गया और वो डर रहा था, हरासा हो रहा था, वो हार चुका था। कहां से? अंदर से। और यहाँ पर पौलुस जो है वो जिस बात की तरफ इशारा कर रहा है, उसने कहा कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका और मैंने अपने ईमान को क्या रखा? मजबूत रखा। उस वक्त की जो हुकूमत थी वो यीशु मसीह का नाम लेने वालों को खत्म कर देती थी। और ये नौजवान हालातों को जानता था, लेकिन अपने मन को, अपनी सोचों को, अपने ख्याल को खुदा के कलाम पर रखता था, ना कि लोगों की बातों पर।
اس نے کہا کہ میں نے حالاتوں پر نگاہ نہیں کی، بلکہ میں نے اگر نگاہ کی ہے تو خدا کی طرف ہے، اور میں نے اس پر ایمان رکھا ہے، اور اس ایمان کو میں نے مضبوط رکھا ہے۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کیا کہا تھا؟ پطرس کو کہا تھا اے شیطان، اگر آج کہیں پادری کسی کو کہہ رہے تھے یہ پادری نہیں ٹھیک ہے، غور کیجئے پطرس نے یہ کیوں کہا، سوری یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ اے شیطان دور ہو؟ یسوع مسیح نے جب اپنے مرنے کی بات کی تو اس نے کہا تھا کہ خدا ایسا نہ ہو کہ تو مرے۔ کیوں کہا پطرس نے؟ کیونکہ پطرس صاحب جانتا تھا کہ یہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا مرنا جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے، ایسی موت جو صلیبی موت ہو وہ یہ مرے، یہ ہونے نہ پائے۔ خداوند رہ گئے شیطان دور ہو، کیونکہ تو خدا کے منصوبے کے اندر رکاوٹ کو پیدا کرتا ہے۔ پطرس نے کیا دیکھا؟ پطرس نے حالات دیکھے، پطرس نے ان باتوں پر غور کیا جو وہ دیکھتا تھا۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، آپ بہت اچھے ہو سکتے ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھے لوگ گاڈلی ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اس لیے خدا کی مرضی کو دیکھا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو سکھا دینا چاہتا ہوں یہ بات کہ جس طرح بچے ڈر رکھتے ہیں اپنے والدین کا کہ اگر میں نے یہ کام کیا، اگر میں نے گالی نکالی تو کسی نے میرے ماں باپ کو کہہ دیا تو یہ بات جب ان کے کانوں تک پہنچے گی تو میرا ماں یا باپ مجھے مارے گا، مجھے ڈانٹے گا۔ اور آج مسیحیوں کو جو ملک پاکستان کے اندر اقلیتی ہے، مائنورٹی ہے، جب آپ اس بات کو، اس چیز کا ڈر رکھیں گے کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو میرا خدا مجھے تنبیہ کرے گا، میرا خدا مجھے ڈانٹے گا، میرا خدا مجھے سکھائے گا۔ اور بائبل یہ سکھاتی ہے کہ وہ سکھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے وہ چھڑی کے استعمال سے منع نہیں کرتا۔ آمین۔ آج بتاؤ، آج لوگوں نے خدا کی حضوری میں جینا بند کر دیا ہے۔ آج لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو ایمان کام کرتا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، میں نے موت کے منہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس ایمان کا تجربہ کیا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں قبر کی تہوں میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس ایمان میں کھڑیے، حالاتوں پر آپ غالب آئیں گے۔ آپ کو بتاؤں، جب بھی بنی اسرائیل کے اندر گناہ ہوتا تھا، جب بھی وہاں پر گناہ سرزد ہونا زیادہ شروع ہو جاتا تھا، خدا ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو بھیجتا تھا وہاں پر۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بادشاہ کا دور تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ میری ملک کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، میرے ملک کے اندر برے حالات ہیں، میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ وہ بادشاہ جب اس نے دیکھا کہ میری زندگی کے اندر، میرے ملک کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں، اور بائبل یہ دکھاتی ہے کہ وہ بھاگ کر ہیکل کے اندر گیا، اور وہاں پر ہیکل میں گھٹنے ٹیک کر اس نے نہ تو دعا کی ہے، نہ اس نے توبہ کی ہے، اس نے ایک ہی کام کیا ہے، اس نے اپنی شرٹ پکڑی اور اس نے اپنی شرٹ کو پھاڑ دیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے شرٹ کو پھاڑ دیا۔ کیوں؟ اور جب وہاں پر لکھا ہے کہ اس کو ایک سکرون ملا، وہاں پر صحیفہ اس نے کھولا، اس نے پڑھا، اور اس نے دعا نہیں کی بلکہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنے کپڑوں کو چاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ جو کچھ خدا کے اس کلام کے اندر لکھا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اس سے اپنے بادشاہ ہونے پر افسوس ہوا، اس سے ایک بڑی ریاست کا بادشاہ ہونے پر دکھ ہوا۔ اس نے کہا کہ خداوند، ہم تیرے خلاف چلے ہیں، تیرے قانون کے خلاف چلے ہیں، تیرے احکام، تیری شریعت یہ فرماتی ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر تابعداری نہیں ہے۔
छोड़ दिया है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने कपड़े फाड़ो, बाइबल के अंदर लिखा है कि अपने दिल को खोलो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इंग्लिश में जाकर वहां पर लिखा है कि अपने दिल को फाड़ो, burst your heart, लिखा है कि अपने दिल को फाड़ो। आज कलीसिया ने यही खोया है। आज हमारे अंदर एहसास जुर्म खत्म हो चुका है। आज हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का वो कलाम उस तौर पर नहीं है जैसे मेरे बहनों और भाइयों होना चाहिए। आज हम चर्च भी आते हैं, हम प्रस्तुत के एंजॉय करते हैं, आ बेटे घर लौट आ, लेकिन जो उसके पीछे म्यूजिक बजता है हमारी सोचें उसकी तरफ होती है। कितनी अच्छी ढोल की बज रही है, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। हमने कभी गौर नहीं किया कि हमारा खुदा कह रहा है क्या बेटे तू घर लौट। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन ने हमें इसीलिए आजाद किया है, खुदावन ने हमें इसीलिए ये आजादी बख्शी है कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए हम अपनी विरासत का जो है वो विरासत को संभाल सके, हम इस मुल्क के अंदर रहकर अपने खानदानों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अफसोस हम उस मुकाम पर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर वो चीज नहीं है जो इस बादशाह के अंदर थी। और वहां पर लिखा है कि उसने अपने कपड़ों को चाक लिखी गया बल्कि फाड़ दिया। और जब हम अपने कपड़ों को फाड़ते हैं तो खुदा इन चीजों को समझता है। और कपड़े फाड़ने का मतलब अपने दिल को फाड़ो और नहायत संजीदगी के साथ इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि खुदा कहां से बोलता है, खुदा क्या कहता है। और बाइबल हमें एक चीज सिखाती है, खुदा ने सुलेमान को कहा कि तूने कभी भी मिस्र के अंदर जाकर ना तो वहां से घोड़े खरीदने हैं और ना तूने कभी भी मिस्र के अंदर जाकर बिजनेस करना है। और बाइबल हमें यह सिखाती है कि सुलेमान मिस्र के अंदर गया, उसने वहां से घोड़े भी खरीदे और वहां पर जाकर उसने शादी भी की, फिरौन की बेटी से शादी करके उसको ब्याह कर ले आया। और बाइबल ये दिखाती है कि उस औरत के सबब से उसका दिल जो है वो खुदा से हट गया और देवताओं की पूजा करने लगा। आमीन आमीन। इस चीज को समझिए कि जब हमारे ध्यान किसी खुदा से हटते हैं, इसलिए मेरे बहनों भाइयों खुदावंद के कलाम पर नहायत संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है ताकि हमारा खुदा हमें बरकत दे। और हमारा खुदा जो हमें हुक्म देता है कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए, इस मुल्क की रियासत के अंदर रहते हुए, अपनी मसीहत के अंदर रहते हुए खुदा के कलाम को इग्नोर ना करें बल्कि हमेशा आगे बढ़ने का सोचें। और आप जब भी आगे बढ़ते हैं, आप जब भी आगे बढ़ने का तहिया करते हैं, तब खुदा आपको नीचे लेकर जाता है। लाइट जा चुकी है, मैं कोशिश करूंगा कि खत्म करूं बाकी अगली दफा। और खुदा ये चाहता है कि हम पस्त होकर और उस ईमान में आगे बढ़े जो खुदा हमें देता है। मेरे बहनों और भाइयों, ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारा बढ़ना खुदा में होगा। फिर इस मुल्क के अंदर हमें आला ओहदे मिलेंगे, फिर इस मुल्क के अंदर हमें अच्छी जॉब्स मिलेंगी, फिर इस मुल्क के अंदर हमारा एक नाम होगा। जिस तरह ये नौजवान मर चुके हैं, दानियल मर चुका है, यूसुफ मर चुका है, ये तहरीके पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले सारे मर चुके हैं, लेकिन आज भी 75 साल बाद इनका मैं जिक्र कर रहा हूं और हजारों साल पहले जो दानियल मर चुका है उसका मैं जिक्र आज भी कर रहा हूं। अपने शख्स को, अपनी कुव्वत को, अपने स्टेटस को पहचाने कि खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर जो मकसद रखता है क्या वो मेरी जिंदगी के अंदर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, आज से इस बात का तहैया कीजिए कि खुदावन ने हमें आज़ाद किया है, हम गुनाह में न रहें। खुदावन ने हमें आज़ादी दी है इस मुल्क के अंदर ताकि हम आज़ाद होकर सोचें। आखिरी बात, बिल्कुल वियतनाम एक स्टेट है अमेरिका के अंदर। अब वहाँ पर ये जो रूल जो है वो ये नहीं है। अब वहाँ पर बाइबल जो है वो जा चुकी है। वहाँ पर बहुत साल पहले एक शख्स को बाइबल का एक पेपर मिल गया, सफ़ा मिल गया, और वो कई दिन तक उसको पढ़ता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया, उसके एक खादम के साथ उसका टकराव हुआ और पादरी साहब से पूछा, भाई साहब देखो है बाइबल नहीं? उसने कहा कि हाँ जी ये बाइबल है। उसने कहा कि भाई साहब मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं कई महीनों से सालों से इसको पढ़ता हूँ, काश मुझे पता होता कि इसके आगे क्या है उसके पीछे क्या है। आप समझते हैं? उसके पास
बाइबल में से सिर्फ एक पेज था, एक सफ़ा था। उसने कहा कि शायद खुदा मुझ पर रहम करे और मैं जान सकूं कि इससे पहले क्या तो इसके बाद क्या। आपके पास खुदा का कलाम है, आपके पास खुदा की वो कुदरत है, उसके मुंह की बातें हैं, उसका ताया हुआ कलाम है। अगर आप इस कलाम का यूज़ करेंगे, आप जिस तरह के मर्जी मुल्क के अंदर रहें, खुदा आपको सरफराज करेगा। आमीन। आए इसी बात के साथ मैं चाहूँगा कि सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और यहीं से हम कलाम का आगाज़ दोबारा करेंगे और कहें कि खुदा तेरा शुक्र करता हूँ, तूने आज मुझे सिखाया है। तो खुदा तूने मुझे जो गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया, मुल्क किसी की गुलामी से आज़ाद किया, तो खुदा ने यीशु के नाम से आज जो मैंने कलाम के अंदर सीखा है कि मेरी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, मुल्क के हालात तब्दील हो सकते हैं, तो खुदा मुझे बरकत दे ताकि मैं अपने मुल्क के अंदर सरफराजी पाऊँ, मेरा खानदान सरफराजी पाए, मैं हमेशा सेहतमंद रहूँ। अगर आप बीमार रहते हैं तो ये भी एक गुलामी का जुआ है, आप इस पर भी गालिब आ सकते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी हकीकत को पहचानें, अपने खुदा की ज़िंदा कलाम को पहचानें, जो आपको एक उम्मीद बख्शता है, जो आपको हमेशा की ज़िंदगी अता करता है। आए क्या हमें इस कलाम की शुक्रगुज़ारी करें, सब दुआ करना शुरू करें। सब दुआ करना शुरू करें।